Radhe Radhe Sabko, this is CA Navneet Suri in front of you. Actually, this is my first video on the YouTube, and have no experience how to record the video and how to present over the YouTube. So this is my very first video and my first initiative to begin with. With the blessing of Radha Krishna ji and Maharani, please let's start with a new journey on this. With my brief introduction, this is CA Navneet Suri in front of you. I'm a qualified chartered accountant and a practicing chartered accountant in the state of Delhi and in the field of indirect taxation. And I'm presenting my views on the new advisory that we have came across recently on 12th Feb 2025 regarding the registration procedure. एक नई एडवाइजरी आई है रूल 8 को लेके on the GST portal, and we will discuss shortly on it. Let me show you the advisory. When we came on the GST portal on the news and update tabs, we will came across with this advisory which we have came across on 12th Feb 2025. Under this advisory, what we have sought, this is basically primarily on the Rule 8 of the CGST Rule 2020-2017. Let me just brief you out about the Rule 8 first. Then we came back to this advisory. Okay. Let's briefly discuss about the registration. We have two types of registration. Firstly, voluntarily. या तो हमें voluntarily खुद अपनी इच्छा से registration लेना हो या compulsorily. Compulsory when we have met the threshold, when we have met the threshold of 20 lakhs and 40 lakhs respectively, तो हमें registration लेना होता है GST में. अब GST का registration procedures has been laid down in the Rule 8 of the CGST rules कि registration लेना कैसे है, क्या क्या compliance करने हैं. तो अभी हम Rule 8 briefly समझ लेते हैं एक बार. Rule 8 क्या कहना चाहते हैं. Rule 8 का एक मेन पॉइंट जो अभी इस एडवाइजरी को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है. लेट मी इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू. एक प्रोसीजर, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं प्रोसीजर का. सबसे पहले हम अपना पैन डिटेल भरते हैं एज अ टैक्स पेयर हु वांट्स टू सीक द रजिस्ट्रेशन. उसके बाद पैन वेरीफाई होने के बाद एक टीआरएन जनरेट होता है. टीआरएन जनरेट होने के बाद पार्ट बी ऑफ RG1 वी हैव टू फाइल. अब ये जो पार्ट बी भरते हैं, इस पार्ट बी को भरने के बाद we have to offer Aadhaar authentication. From 2023 onwards, we have two options in some limited states, not all over India. This is applicable on few states like Gujarat. या तो हम ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेट कर लें या बायोमेट्रिक थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर में जाके फिजिकली हमें आधार ऑथेंटिकेट करना होता है. सो व्हाट इज दिस. जैसे ही पार्ट बी भरते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पार्ट बी के अंदर ही ऑप्शन होता है. तो जब हम ऑनलाइन ऑप्ट करता है एक टैक्स पेयर वाइल रजिस्ट्रेशन, तो एक लिंक जनरेट होता है. लिंक जनरेट होने के बाद ये लिंक ईमेल एड्रेस जो हमने पार्ट ए में दिया था वहाँ पे रिसीव होता है टैक्स पेयर को, और उस ईमेल के थ्रू हमें ऑनलाइन वाइल विद OTP वी हैव टू ऑथेंटिकेट द आधार. ओके. और दूसरा ऑप्शन है बायोमेट्रिक के थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर जाके, यानी जिसको हम GSK भी बोलते हैं, GST सुविधा केंद्र में जाके, जो कि रिस्पेक्टिव आपके जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि आपके रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के आसपास कौन सा GSK है. तो फिजिकली आपको GSK में जाना होता है और GSK के अंदर जाके फिजिकली वाइल विद द फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अ बायोमेट्रिक विद यूजिंग योर थंब हमें आधार ऑथेंटिकेट कराना होता है.
सो वी हैव टू ऑप्शंस विद अस, ये चॉइस है अभी, टू चूज ईदर ऑफ द टू। अब क्या हुआ, 2023 में 31 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक चीज इंसर्ट करी गई, अ रेड फ्लैग प्रोवाइजो, प्रोवाइजो टू रूल 4A, सॉरी टू रूल 8 सब रूल 4A। क्या बोलता है वो, अकॉर्डिंग टू दिस while a person opt for the online authentication through OTP and based on the risk parameters जो internally defined हैं to the respective department, अगर ये टैक्स पे जो रजिस्ट्रेशन सीक कर रहा है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेक registrations, to minimize the risk of fake registrations based on the risk parameters, अगर ये टैक्स पेयर रेड फ्लैग पैरामीटर में फॉल करता है, so online Aadhaar authentication will not possible for that particular person, then he has to compulsory go with the बायोमेट्रिक जीएसके ऑप्शन फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन, यानी फिजिकली उसको जाकर उस पर्टिकुलर जीएसके में जो उसके जुरिस्डिक्शन में लोकेटेड है, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बायोमेट्रिक के थ्रू अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाना कंपलसरी है। दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ रूल 8। इसी के ऊपर एक एडवाइजरी आई है हमारे सामने 12 Feb 2025 को। लेट मी गो टू दैट एडवाइजरी। It's divided into three different points. Briefly, I'll explain you. एप्लीकेंट्स नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बायोमेट्रिक का या फिर ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट उस पर्सन की बात करें इसने पहले ही स्टेज पे बायोमेट्रिक ऑप्ट किया अदर देन ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि मान मान लीजिए वो फ़ोन नंबर जो अभी आधार में है उस पर OTP नहीं आ रहा हो। N number of reason can be possible that a person is opting for the biometric Aadhaar authentication, that is a physical visit to the GSK. In that particular in that particular point, the person has to visit to the respective GSK with the physical documents and have to do biometric Aadhaar authentication. This is what the first point is telling of us. On second point, if we came, दिस इज टॉक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कि जब पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन ऑप्ट किया बट इट इज फॉल्स अंडर द रेड फ्लैग रिस्क पैरामीटर्स। उस पर्टिकुलर केस में जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, माइट इन केस ऑफ प्रमोटर पार्टनर, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म प्रमोटर, इन केस ऑफ अ कंपनी, जो भी प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है उस पर्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान, उस पर्सन को अपना फिजिकल आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए जीएसके विजिट करना जरूरी है, ऑब्वियसली इन द रिस्पेक्टिव स्टेट जहाँ पे जीएसके का कॉन्सेप्ट अभी एप्लीकेबल है, लाइक गुजरात। थर्ड पॉइंट इज टॉक अबाउट नॉन जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। अगर 15 दिन के अंदर मान लीजिए जब आपका रेड फ्लैग पैरामीटर में फॉल किया, उस रेड फ्लैग पैरामीटर में फॉल करने के बाद होता क्या है, एक लिंक जनरेट होता है। लिंक जो है ईमेल एड्रेस पे आता है, उसके थ्रू आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है अपने रिस्पेक्टिव जीएसके के साथ। उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आपको फिजिकली विजिट करना पड़ता है एंड यूजिंग योर राइट हैंड थंब यू हैव टू डू द आधार ऑथेंटिकेशन फिजिकली वाई द बायोमेट्रिक। अगर वो जो लिंक जनरेट हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का। इन केस इफ द टैक्स पेयर फेल्स टू डू इन 15 डेज, उस पर्टिकुलर केस में ARN यानी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, ARN ही जनरेट नहीं होगा, देन द पर्सन हैज़ टू गो विद द फ्रेश एप्लीकेशन अगेन। सिमिलरली जो जिन्होंने आधार एप्लीकेंट ने ऑप्टी फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल बायोमेट्रिक के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन किया था, उन पर्टिकुलर पर्सन्स को भी फ्रॉम द डेट व्हेन दे आर ऑप्टिंग फॉर द फिजिकल बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, उसके 15 दिन के अंदर अंदर
अपना फिजिकल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो वो 15 दिन लैप्स होने के बाद वो ARN जनरेट नहीं होगा और दे हैज़ टू गो विद द फ्रेश एप्लीकेशन अगेन. So this is the particular advisory that we came across on 12th Feb 2025. Hope you will like this video. In case of any further query regarding GST, you can reach out with me in the comment box. Thank you for your time. Thank you so much.